कंस्ट्रक्शन को लेके और रिनोवेशन और रिफर्बिशमेंट अपग्रेडेशन को लेके काफी इलेबोरेट प्लान्स हैं। और डॉक्टर अजय वर्मा क्योंकि प्लानिंग देखते हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा ब्रीफली उसके बारे में बताएं। As you know that the building is very old and we are regularly upgrading and renovating it because we have to adhere to guidelines of National Medical Commission also. So and our DNB and PG courses are coming next year. So DNB is coming this year and PG is coming next year. So we have to regularly renovate and upgrade the hospitals. So our medical ICU has been refurbished. Our medical ICU of the Jilpant Hospital has been refurbished and equipments have been procured from the HDFC Bank through a CSR initiative. And next week we are inaugurating it. Next is facelifting of the Jilpant Hospital. It is in the process, and repair and renovation work of the old ICU building in which medical college is running. It is also in process. Then neonatal ICU. It has also been renovation is in process. It will start next week. As soon as the medical ICU is inaugurated, it will start. The renovation of the neonatal ICU will start. So next is apart from the new medical campus, the administrative building of the medical college and the library block for the students. It is almost complete, and next month they will hand over the building to us. So all the library block and administrative block will shift there. Then construction of the basic science block, which is the main part of the medical college. It has already been sanctioned, and the tender is in the process. And construction of the third boy, we have already 2 boys hostel and 2 girls hostel in the medical campus. And third boys hostel is also almost complete, and within 1 or 2 months it will also be handed over. Then we have also sent a proposal to the administration for hiring a consultancy firm for the renovation and upgradation of the Jilpant Hospital, because we have PG is coming and DNB courses are coming, so we have to upgrade it to a super specialty center. So for this we need a consultancy firm who has experience in the hospital maintenance, so they can come and assess and how to expand this hospital. So they will work. So we also send a proposal to administration for this. So this is about constructions. थैंक यू डॉक्टर वर्मा। डॉक्टर एम के साहा, क्योंकि सर आप लोग सर को बहुत पुराना जानते हैं, सर लगभग 35 साल से आपके आइलैंड में काम कर रहे हैं और सर ने कई लोगों की जानें बचाई हैं और कई बच्चों के लिए सर ने कई महिलाओं की डिलीवरी करी है और कई बच्चे सर के हाथ के ही पैदा हुए होंगे, हो सकता है आप में से भी कुछ हो एक आध। सो कुछ बच्चे मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं सर के पैदा किए हुए, और सर आजकल हॉस्पिटल देख रहे हैं, तो सर आपसे थोड़ा सा हॉस्पिटल की नई पॉलिसीज और जो अचीवमेंट्स हैं पिछले 1.5-2 साल में उसके बारे में बात करें। डॉक्टर साहब। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। कुछ अचीवमेंट के बारे में पहले मैं आपको रूबरू करूं, जैसे कि एबी फिस्टुला आप सुने होंगे, ये एक किस्म की सर्जरी है, छोटी ऑपरेशन है हाथ की, जबकि यहाँ हाथ में होती है, जिसके जरिए पेशेंट को डायलिसिस पेशेंट को बहुत सुविधाएं होती है। तो वो सर्जरी के लिए हमें पहले यहाँ से मेनलैंड रेफर किया जाता था, और एक आध बार ऐसे भी हुए हम मेनलैंड से एबी सर्जन को बुलाए और यहाँ पे करवाए। लेकिन आज के तारीख में वी आर हैप्पी टू अनाउंस वी हैव गॉट एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, जो कि कॉम्पिटेंट है और जो आज के तारीख में कई सारे सेवरल डजन्स ऑफ एबी फिस्टुला वो खुद कर लिए। तो वी आर रियली ब्लेस्ड टू हैव दैट सर्जन। Okay, so we seldom, if ever, send patients for AV fistula creation in the mainland, unless it's a highly complicated. अगर ना हो तो हम यहीं पे करते हैं, और same surgeon is competent in doing plastic surgery also. So we earlier plastic surgeon हमारे पास नहीं होते थे, लिहाजा हमें हर एक पेशेंट को mainland भेजना पड़ता था, लेकिन आज के तारीख में उसकी जरूरत जो है काफी हद तक कम हो चुकी है। This is a remarkable achievement. I think you should get credit for that. उसके बाद जहां तक एम्बुलेंस की बात है, इन्होंने ऑलरेडी जिक्र किया है, तो 2 एम्बुलेंस जिसमें कि BLS यानी बेसिक लाइफ सेविंग सिस्टम है और एक एडवांस केयर लाइफ सेविंग सिस्टम है, वो वी आर गोइंग टू प्रोक्योर दोस, दैट विल बी एन एडेड। उसमें क्या है, उसमें वेंटिलेटर और तमाम चीजें हैं, ताकि रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो और पेशेंट की जान मतलब बहुत ही खतरे में है, ऐसे में अगर जरूरत पड़े तो वहीं पे एट दी अपुस्तान ऑनली वहां पे उनको किया जा सकता है वेंटिलेटर पे, so that the patient can be transported safe and sound until
the patient reaches to the casualty. तो ये इसके लिए 2 BLS और 1 ACLS एम्बुलेंस प्रोक्योर की प्रोसेस में है. वी आर गोइंग टू प्रोक्योर वेरी शॉर्टली. अलावा उसके एक और अचीवमेंट जो हाल ही में हुए हैं उससे शायद आप वाकिफ होंगे कि कैटरेक्ट केसेस यानी आई के जो केसेस होते हैं, कैटरेक्ट केसेस कई सालों से हम कर नहीं पा रहे थे क्योंकि हमारे पास कॉम्पिटेंट आई सर्जन नहीं थे. जूनियर लेवल के सर्जन थे, बट आई आप जानते हैं इतने सेंसिटिव है, जो लिटिल बिट ऑफ कॉम्प्लिकेशन कैन लीड टू ब्लाइंडनेस. सो वी आर नॉट इन ए पोजीशन टू टेक द रिस्क. तो हमने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के असिस्टेंट से 3 टीमें बुलाई है 15 डेज के, और एज मेनी एज 405 कैटरेक्ट केसेस हैव बीन डन इन ए स्पैन ऑफ 45 days. 6 weeks में 400 plus 5 cataract cases could be done here. Else we had to send, नहीं तो हमें बाहर भेजना पड़ता था. तो इससे हम अंदाजा लग सकते हैं कितने पैसे उनको बच जाते हैं, कितनी परेशानी से उनको छुटकारा मिली है. खाली वो नहीं, बल्कि एक और इम्पोर्टेंट चीज है आई डिपार्टमेंट के. तो 47 कैटरेक्ट सर्जरी जो कैटरेक्ट पेशेंट निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में थे, with the help of the administration we could manage to get those patients by installments. शिप के जरिए यहाँ पे रखे, असेसमेंट किए, ऑपरेट किए और फिर शिप से स्पेशली शिप से उनको वापस भेजे गए. तो ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट है. उसमें से एक बच्ची थी जो कि 14 years के, who was blind since birth in one eye, और उनके ऑपरेशन यहाँ पे करे, and she has gone back with her sight, I mean return. So a great achievement that we can take credit for. अलावा उसके जैसे ऑलरेडी जिक्र किया है अर्पिता ने कि कायाकल्प स्कीम होते हैं जो सैनिटेशन, गार्बेज डिस्पोजल, बायोमेडिकल डिस्पोजल, क्लीनलीनेस, ये सब को देखते हैं. ये कायाकल्प जो है सेंट्रल स्कीम है, उसके तहत हमारे हॉस्पिटल को हैज स्कोर्ड मोर देन 85%. मतलब दिस इज ए ग्रेट अचीवमेंट फॉर व्हिच मिनिस्ट्री हैज एग्रीड टू अवार्ड अस फॉर द ईयर 2023. हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कमी नहीं है, लेकिन we have tried our level best to improve it as much as possible to the standard that all other great hospitals have already achieved by now. Now कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप्स जो हमने लिए हैं. प्रेस्क्रिप्शन ऑडिट कमिटी, एक ऑडिट कमिटी बनाई गई है whose job is basically to see that जो प्रेस्क्रिप्शन ओपीडी में या इनपेशेंट में देते हैं हम लोग लिख के कि फलाना वक्त दवाई लेना है या नहीं लेना है, उसे ऑडिट बीच में किया जाता है. तो they have already sensitized all the staffs and other subordinates to keep an eye on it. If they find that some of the members of the doctors or whosoever are not following the convention and rule, so that is brought to our notice, and then we take corrective measures to see that the history doesn't repeat. So this is what special role that audit inspection का prescription audit committee serves. उसके अलावा जो इन्होंने ऑलरेडी बताया है पेशेंट फीडबैक सिस्टम, जिसके जरिए एनी पेशेंट अटेंडेंट, रिलेटिव, those who are unhappy with the services rendered, they are at liberty to raise the issue and bring it to us. And periodically we convene meeting in the meetings, and then we see the way, and with all the head of the departments, we call, including the matron, a medical officer in charge of the OPD, so that whenever there are complaints, then we see that the complaints are duly addressed. And then in some cases we give a feedback to the patient also, because we want them not to be anonymous. They must write their name and contact number so that we can inform them much to their satisfaction as to what steps we have taken to address their issues. Okay, so that is very much there for the last well over a year and a half. It's already in place. And quality assurance cell के बारे में तो ऑलरेडी बता दिए हैं that is being periodically assessed. एक और न्यू एडिशन जो हमारे पास होने वाले हैं, जो कैजुअलिटी सर्जिकल आईसीयू और मेडिकल आईसीयू में पेशेंट भर्ती होते हैं, कई बार द कंडीशंस आर सो ग्रेट दैट दे आर नॉट इन ए पोजीशन टू बी ट्रांसफर्ड टू मेन लाइन. अगर उन्हें ट्रांसफर भी करना हो तो बहुत बड़ी दिक्कतें आती है, क्योंकि एरोप्लेन को मना कर देते हैं, पेशेंट इतनी सीरियस है, वेंटिलेटर के साथ वो जा नहीं सकते. इनके लिए वी आर ऑलरेडी इन टच विद एम्स भोपाल. They have intensivist
जो एक्सपर्ट इन डीलिंग विथ इमरजेंसीज, तो वी आर गोइंग टू एस्टेब्लिश a communications with them, and we will send the data, real-time data to them regarding any serious patient, and seek their opinion as to how to go about it in order to improve this thing. But this was not there earlier. This is a new initiative that is already in the pipeline, and very soon I think we'll be able to establish that. That will be a great achievement depending on the number of ICU beds we have, surgical ICU, medical ICU, and casualty, where critically ill patients are admitted, so that we can reduce the number of deaths to the minimum. Then comes एक इम्यूनो कीमोथेरेपी यूनिट के बारे में तो इन्होंने ऑलरेडी बताया है. दैट इज ए न्यू एडिशन दैट वी हैव. पहले जो भी पेशेंट्स कैंसर के पेशेंट मेंटेन जाया करते थे, उनके जो कीमोथेरेपी दिया जाता था लिख के, उनके लिए कई बार उन्हें फिर दोबारा वापस जाना पड़ता था इन 21 डेज या 1 मंथ. और हमने एक अलग से एक यूनिट खोली है जिसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन इज इन चार्ज ऑफ आइसोलेशन वार्ड में. वहीं पे पेशेंट को हम बारी बारी कीमोथेरेपी देते हैं. That is a revolutionary state that we have introduced not very long ago, but it's a couple of months already well in its operation stage. और जैसे कि आप जानते होंगे, we have got state of the art cath lab जो कि roughly 10 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में बनाए गए थे. And we are lucky enough to have Dr. Srikant, who was awarded the Aegis Commendation Certificate last year for the extraordinary work that he has performed. उनके चलते we have been able to save many patients' life, and because heart disease ऐसी बीमारी है जिससे कि पेशेंट की मौत जल्दी हो जाता है थोड़ी देर में ही, unless it is attended to, because many of the patients are so sick as not to be able to go to mainland for their treatment. So many of such lives have been saved here thanks to the cardiologist. और उसमें एक छोटी सी परिसंख्या मैं देता हूँ. एंजियोग्राफी, कोरोनरी एंजियोग्राफी आज तक 621 किए गए हैं, और पेरिफेरल एंजियोग्राफी होते हैं वो 12 किए गए हैं. एंजियोप्लास्टी 200 किए गए हैं अब तक. पेसमेकर्स इंसर्ट किए गए हैं एज मेनी एज 80 पेशेंट्स में. और कार्डियोसेंटेसिस 10 पेशेंट. कार्डियोसेंटेसिस मीन्स हार्ट के एक चेंबर बाहर एक बलून के अंदर होते हैं हार्ट, उसके अंदर अगर खून जम जाता है या फ्लूइड जम जाता है तो हार्ट का हम नहीं कर पाते हैं, तो उसे ड्रेन करते हैं ताकि हार्ट अपने हिसाब से काम कर पाए. एनीवे, तो ये है द रिमार्केबल अचीवमेंट दैट वी हैव गॉट एवर सिंस डॉक्टर श्रीकांत द कार्डियोलॉजिस्ट हैज जॉइंड आवर डिपार्टमेंट for the last 1.5 year, I guess. 1.5 year, not more than that. That is year, maybe 1 year, just 1 year, 3 months. ओके, अभी एक हॉस्पिटल स्टैटिस्टिक्स के बारे में आपको वाकिफ करना चाहता हूँ. जो हमारे ओपीडी के स्टैटिस्टिक्स जिन्होंने डॉक्टर ने ऑलरेडी बताया है, 21-22 में 3,94,000 और 22-23 में 4,21,000 यानी इंक्रीजिंग. 23-24 जो 9 मंथ्स में 3,04,000. तो ये इस तरह से मतलब इजाफा होते जा रहे हैं धीरे धीरे. इनपेशेंट के भी थोड़े फर्क है. 26,000 हुआ करते थे 21-22 में, और जो कि 27,650 और 23rd से जुलाई 9 मंथ में आकर के 18,243. ये तो चलो स्टैटिस्टिक्स की बात है. अभी मेजर सर्जरी और माइनर सर्जरी की बात करते हैं. मेजर सर्जरी जो 21-22 में 2,127, 22-23 में इट इंक्रीज टू 2,482 और 23-24 में इंक्रीज टू 2,418 एंड नाउ इट इज 3,224. यानी कि धीरे धीरे सर्जरी जो है नंबर बढ़ते जा रहे हैं. माइनर सर्जरी की भी इसी तरह का स्टैटिस्टिक्स है. अभी आते हैं डेथ की स्टैटिस्टिक्स पे. जो टोटल डेथ 21-22 में 746 डेथ, और नवंबर 2022 टू अक्टूबर 2023 848, एंड नवंबर 23 से जुलाई तक की जो है डेट 574. अगर हम कॉज ऑफ डेथ की विश्लेषण करें तो देखते हैं ब्रॉड डेथ उसमें से 6% है 2021-22 में, 2022-23 में 4% एंड 23-24 में अब तक 4% है. और क्रॉनिक इलनेस
की वजह से डेथ हुई है, ये भी स्टैटिस्टिक्स just over a period increasing from 26% to 30% and now it is 34%. Chronic illness की incidences जो है काफी हद तक ज्यादा है। और जेनेटिक एज यानी 60 इयर्स के ऊपर की डेथ में देखा जाए तो as many as 45% की डेथ हुई थी 21-22 में, 40% in 22-23 और आज के तारीख में 39%। तो अगर हम ओपीडी और इनपेशेंट के तुलना कंपेयर करें तो डेथ रेट पर 1000 ऑफ ओपीडी प्लस आईपीडी 1.58 पर 1000 2021-22 में, 2022-23 में 1.9 नेग्लिजिबल है और आज के तारीख में 1.6 यानी शोइंग ए टेंडेंसी टुवर्ड्स डिक्लाइन। और इनपेशेंट्स की डेथ अगर देखें पर 1000 21-22 में 28.68, 22-23 में 30.66 and up till now it is 32.10। एक दो और स्टैटिस्टिक्स देखे मैं खत्म करूंगा। जो कॉज ऑफ डेथ की अगर स्टैटिस्टिक्स देखें काफी हद तक सीकेडी यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज, जिससे आप शायद वाकिफ होंगे, जिसकी वजह से तौर पे फिस्टुला बनाए जाते हैं, डायलिसिस दी जाती है रेगुलर तौर पे, उसकी फ्रीक्वेंसी 21-22 में 118 यानी 15.82% क्रॉनिक किडनी डिजीज के चलते डेथ हुए थे। 22-23 में वो 15.44 और 23-24 में भी अभी भी 17.24। और उसी तरह क्रॉनिक लीवर डिजीज which is another notorious disease that this particular part of the country is badly afflicted with, उसमें भी इसी तरह से डेथ होते गए। कैंसर एक थ्री जो है मेन, क्रॉनिक किडनी डिजीज, क्रॉनिक लीवर डिजीज एंड कैंसर, ये मेन कॉज ऑफ हेड इंजरी के भी इंसिडेंट देखा जाए तो उसी तरह रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट भी देखेंगे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। पॉइजनिंग के केसेस में कोई चेंजेस नहीं है, 555। लेप्टोस्पायरोसिस 11 थे 21-22 में, जो कि कम होके 4 हो गए थे परसेंट अबाउट 22-23 में, और अभी जो है 8% यानी इजाफा हुई है। तो एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, एनएफएस से जो डेटा होती है जिसमें कि दिखा गया है कि वुमेन क्या चीज ओके ठीक। तो लास्टली मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि मैटरनल डेथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइटल स्टैटिस्टिक्स है, जो कई बार लोगों में ये धारणा है कि हमारे यहाँ पे प्रेग्नेंट मदर अगर आते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है, लिहाजा वो प्राइवेट में चले जाते हैं। इस तरह की एक मिसकंसेप्शन है। मैं आपको एक ईयर वाइज डेटा देता हूं जिससे कि आप अंदाजा लगा सकते हैं। 2014 में तो कुल 3 डेथ हुए थे अंडमान निकोबार में, यानी 53%, जबकि इस कंट्री में इट वाज 2014 में नो लेस देन 200। नो, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ डेथ्स पर 1 लाख लाइव बर्थ, नॉट 1000 और 100। नंबर ऑफ मैटरनल डेथ यानी डेथ एज ए रिजल्ट ऑफ प्रेगनेंसी और इट्स कॉम्प्लिकेशन, उसके चलते अगर किसी के डेथ होते हैं तो वो नंबर ऑफ डेथ पर 100,000 लाइव बर्थ इस तरह से कैलकुलेट की जाती है। तो ये था 53% इन 2014 में, 2015 में ये 96%, 2016 में 41%, 2017 में 106, 2018 में 85, 2019 में 155, 2020 में 151, 2021 में just 52, 2022 में 101 एंड 2023 में 122। ये जो ऑल द डेटा लेस देन नेशनल स्टैटिस्टिक्स। और लास्टली मैं एक इंपॉर्टेंट और वेरी एनकरेजिंग इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। आई ज्वाइन बैक इन द मंथ ऑफ नवंबर 2023 और आज तक देयर हैज नॉट बीन ए सिंगल मैटरनल डेथ, not a single maternal death,
नवंबर 2023 से आज अगस्त तक, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तो जो ये अफवाहें कई बार फैलाए जाते हैं कि पेशेंट इसलिए नहीं जाते, आप ही मरते हैं, तो इसको मैं गलत साबित करना चाहता हूँ। आप चाहे भले इसको कंफर्म कर लीजिए और तरीके से, तो ये हकीकत है। कई बार पेशेंट्स आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तमाम कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं। कई बार निकोबार ग्रुप से आते ही मतलब टाइम लग जाते हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर इज नॉट अवेलेबल पर्टिकुलरली एट नाइट। आप जानते होंगे मोस्ट ऑफ द डिलीवरीज टेक प्लेस एट नाइट, ये रूल है। और उस टाइम कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो उनको वेट करना पड़ता है टिल नेक्स्ट मॉर्निंग, फिर जाके हेलीकॉप्टर की इंतजामात होती है। और एवरी मिनट एवरी आवर मैटर्स टू द सर्वाइवल ऑफ द मदर। तो वो एक इशू हमारे पास है। और क्योंकि हमारे पॉपुलेशन कम है, इवन एक डेथ होने से स्टैटिस्टिक्स स्केल चेंज हो जाता है। अनलाइक बाकी जगह पे जहां पे लाखों पे है, हमारे टोटल अब अगर डिलीवरी नंबर देखें 2014 में 5672 और 2023 में इट इज 4080, थोड़ी डिक्लाइन है। इसमें उससे भी और कम थे 2022 में 3949 और 95% मदर हॉस्पिटल या प्राइमरी हेल्थ सेंटर इंस्टीट्यूशन एंड डिलीवरी होता है, अनलाइक मेनी अदर प्लेसेस जहाँ पे 60 या मैक्सिमम 70% की डिलीवरी इंस्टीट्यूट में होता है, बाकी 20-30% जब घर में डिलीवरी होती है वहाँ पे तो कोई उनको एक्सपीरियंस नहीं है, लिहाजा डेथ के चांसेस जो है काफी हद तक बढ़ जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मोस्टली institution and delivery or 100% of the pregnant women or mother are registered. Not a single one comes without registration. So that makes a great deal of difference. Pregnancy के दौरान हम पहले दिन से मतलब उनको मॉनिटर कर सकते हैं और कुछ डिजीज जो प्रेगनेंसी के चलते खास होते हैं तो उन्हें हम निगरानी रख सकते हैं और उसे समय रहते हुए उसे कंट्रोल करते हैं या टर्मिनेट करते हैं प्रेगनेंसी, ताकि ये और बढ़े। अल्ट्रासाउंड एक मशीन है जहां पे टेक्नीशियन नहीं होती है। नंबर 1, अल्ट्रासाउंड सिर्फ ट्रेन डॉक्टर ही कर सकते हैं। उसमें से 3 किस्म के डॉक्टर हैं जो एंटाइटल्ड है अल्ट्रासाउंड करने के लिए। एक है जो रेडियोलॉजी में डिग्री हासिल किए हैं, एमडी डिग्री या डिप्लोमा, और एक है गायनेकोलॉजिस्ट, और थर्ड है जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर, यानी जिन्होंने खाली एमबीबीएस की है, लेकिन उनके लिए शर्त यही है कि उन्हें 6 महीने की ट्रेनिंग लेनी होती है एक बोनाफाइड सेंटर में। उसके बाद एक एग्जाम ली जाती है, टेस्ट ली जाती है, उसे पास करने के बाद उनको सर्टिफिकेट मिलते हैं ये क्वालिफाइड टू डू अल्ट्रासाउंड। ये अल्ट्रासाउंड में ये बंदी से इसलिए है क्योंकि आप जानते होंगे फीमेल फीटिसाइड के बारे में सुना होगा, जो प्रेगनेंसी होते ही सेक्स टेस्ट करते हैं, देख लेते हैं कि सेक्स है, फीमेल है तो उसे टर्मिनेट कर एबॉर्शन करा देते हैं। इसके चलते बाकायदा एक एक्ट भी बनी हुई है जिसे पीसीपीएनडीटी एक्ट बोलते हैं। तो इसलिए ये सारी पाबंदियां हैं। तो हमारे कई जगह पे अल्ट्रासाउंड मशीन तो मुहैया कराए गए, लेकिन हमारे पास आज की तारीख में ट्रेन मेडिकल ऑफिसर की कमी है। रेडियोलॉजिस्ट भी जाते हैं तो पारी पारी जैसे ही उनके रोस्टर भी बने हुए हैं उन्हें एक एक जगह पे भेजा जाता है। तो ये एक जो है मैं आपको वकील करना चाहता हूँ कि टेक्नीशियन नहीं होते इसके लिए, लाइक ईसीजी के लिए टेक्नीशियन, एक्सरे के लिए टेक्नीशियन करते हैं, लेकिन अल्ट्रासाउंड मशीन कैन बी डन ओनली बाय ए ट्रेन्ड डॉक्टर्स एंड नॉन एल्स। So that's all for today. Thank you so much. I give it back to Madam. Thank you, Dr. Saha.